السلام علیکم. ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قربانی کے ایام ان قریب آنے والے ہیں. اسی ضمن میں ہم نے قربانی کے ٹاپک کو لیا ہے اور ہمارے جو بھی ہفتہ وار اجتماعات لاک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن چل رہے ہیں تو اس میں اسی کو انشاءاللہ عید تک ہم لے کر چلیں گے. ایک حدیث پاک آپ سن لیں, اس کے بعد ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے سیشن کو اینڈ تک لے جائیں گے. طبرانی کی روایت ہے, حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی, رک جائے گی. دو چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی. ایک تو ایک ہے خوش دلی سے, یعنی اس میں دل میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو اور ایک پریشر میں آ کر اور لوگوں کے تناؤ میں آ کر لوگ کیا کہیں گے, بچوں کی ڈیمانڈ ہے, مجبوری میں دل میں کوفت محسوس کر کے ایک بے چینی میں صرف ایک فارمیلٹی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خوشی سے. جیسے 1 لاکھ روپے ملے تو کتنی خوشی ہوتی بندے کو, تو ویسا قربانی کرتے وقت اگر سے پیسے جا رہے 30,000 25,000 یا حصے کی قربانی کا تو 3,500 تو جو خوشی بندے کو 1 لاکھ روپے ملنے پر ہوتی ہے تو ویسی ہی خوشی ہو. چلو اس حد تک خوشی نہیں ہے تو کم سے کم غم تو نہ ہو, کم سے کم بندے کو رنج تو نہ ہو, کم سے کم بندے کے دل میں جو ہے ایک عجیب و غریب کیفیت تو نہ ہو, کیسا ہو یا پیسے جاتے نہ, تو ایسا نہ ہو. خوش دلی سے, خاص کر ہماری عورتوں کے حوالے سے بہت زیادہ عورتوں میں یہ بہانے بازی ہوتی ہے اور ان کو مسائل معلوم ہی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی ہے ہی نہیں. تو یہ اس میں جب ایسے مسائل ہم سیکھتے ہیں کہ بھئی عورتوں کے پاس سونا چاندی ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے تو فوراً ان کے دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اگر کسی مجبوری میں آ کر وہ دے بھی دے قربانی تو خوش دلی سے قربانی نہیں ہوتی ان کی, بس ایک فارمیلٹی کے لیے دیتے ہیں. اب یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کا کمال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, کیونکہ صحابہ اکرام کے اندر ایسی دل میں کوئی بے چینی نہیں ہوتی تھی, وہ خوش دلی سے ہی کرتے تھے. لیکن یہاں کیوں بتایا گیا جس نے خوش دلی سے؟ صحابہ اکرام تو خوش دلی سے ہی قربانی کیا کرتے تھے. وہ تو ایک کیا کئی اونٹ کئی بکرے ذبح کر دیا کرتے تھے, صرف بقر عید پر نہیں بلکہ جب چاہے دین کو ضرورت پڑتی تو تب وہ اللہ کی راہ میں جانور دے دیا کرتے تھے. تو یہاں پر خوش دلی سے کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے, کیونکہ آقا کریم علیہ السلام جانتے ہیں کہ قرب قیامت میں یعنی 1400 سال بعد 1500 سال بعد میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے دین سے دوری کی وجہ سے, وہ قربانی تو کریں گے لیکن خوش دلی سے نہیں, فارمیلٹی کے لیے کریں گے. تو ہمارے لیے سمجھایا گیا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی, یعنی وہ رک جائے گی. تو اس طریقے سے بندہ جو ہے دل بڑا کر کے اطمینان و سکون سے کوئی بھی کسی بھی طریقے کی جو ہے دل میں خراش نہ آئے, اس طریقے سے کرے اور طالب ثواب ہو کر. اب اس میں ریاکاری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب ہمیں کتنے کا بکرا لائیں, 50,000 کا, 50,000 کا لیں, ہمیں 70,000 کا لیں گے. اب باقاعدہ اس میں گلی میں دکھانا, بچوں کو دینا اور لوگوں پوچھنا کتنے لے بکرا, کہاں سے لے بکرا, تب ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا. بولنا باقاعدہ ہے اور پوچھتے بھی ہمیں باقاعدہ کتنے قربانیاں یہ بار بکرا لا رہے, اس میں حصہ لے رہے تمہیں, یعنی ہمیں ہونا کا تو اس لیے پوچھتے کہ انہیں بھی مجھے انٹرن پوچھنا, ریٹرن میں مجھے بھی پوچھنا, اور تمہیں کہاں سے لے, اے ہمیں وہاں سے لے, اے ہمیں مہاراشٹر سے لے, اے ہمیں بنگلور سے لے, سنگم کیسے ہے, باقاعدہ اس میں لڑانا, یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں. تو یہاں پر جو طالب ثواب ہے وہ نہیں ملے گا.
और इसकी बरकत क्या फरमाई गई, कुर्बानी करेगा तो जहन्नम से वो आज़ाद हो जाएगा, जहन्नम की राह में रुकावट बनेगा। देखो हम कामयाब बंदा जो है जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब कुर्बानी के हवाले से फरमाया गया कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की नीयत से और खुश दिली से जब वो कुर्बानी करता है, अल्लाह उसे जहन्नम से आज़ाद कर देता है। यूं कहे कि जहन्नम और उसके दरमियान रुकावट बन जाती है, हिजाब बन जाएगा, यानी वो बंदा जहन्नम से बच जाएगा। तो मतलब जहन्नम से बच जाएगा तो मतलब क्या, जन्नत में जाएगा। पास या फेल, पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छा या बुरा। नेक लोगों को जब जहन्नम से बचा लिया जाएगा, जाहिर सी बात है कहाँ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। तो यकीनी सी बात है। तो इस हदीस से ये भी आप मतलब निकाल सकते हैं कि इंशाअल्लाह जन्नत हमें मिलेगी। तो सही नीयत से, खुश दिली से, क्या भी पैसे कहाँ भी जाते, हमें जो ये ढेर होशियारी करके हमें पैसे बचाने की कोशिश करते, कभी कभार ये कहाँ का लगाया, वही 15-20 हज़ार बकरा का क्या करते, ये 3-3.5 हज़ार क्या हर साल दिए सकच है, नहीं तो बोल को हमें लॉकडाउन है, ये बार कोरोना है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो हमें ये कर लेते हैं। बहरहाल गरीबों पर वाजिब नहीं है, वो हम मसाइल सीखेंगे, ये अमीरों पर है। कोई मतलब फिर ये नेगेटिव लेकर भाई देना चाहते हैं तो बोल को कर्जा लेकर वहां यहाँ पैसे लेकर देने की जरूरत नहीं। मैं अमीरों की बात बोल रहा हूँ, जिनके पास वाकई पैसे हैं, तो जिनके पास वाकई पैसे हैं, जिनके ऊपर वाजिब है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो दिल में कोई भी ऐसा ख्याल ना लाए किनके ऊपर वाजिब है, ये भी डिटेल मसाइल है, इंशाल्लाह बितरतीब सीखेंगे तो दिल खोल कर दें। वरना हम इस तरीके से बहानेबाजी करके पैसे तो बचाएंगे लेकिन वो रहेंगे नहीं। कभी हॉस्पिटल के लिए चले जाएंगे, कभी घर में कोई चीज़ खराब हो जाएगी, या बच्चे कोई चीज़ तोड़ देंगे, या आपकी खुद बीमारी में लग जाएंगे, कोई ना कोई जरिए से पैसे चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए देंगे आप तो पैसे भी जाएंगे, सवाब भी मिलेगा और आखिरत का एक अजीम सरमाया बन जाएगा। मसला समात फरमाएं, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। यानी कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10, 11, 12 ज़ुल्हिज्जा। 10 माने जो ईद की नमाज हम पढ़ते हैं, ये 3 दिन में अगर वो बंदा मुसाफिर है, मुसाफिर का मतलब अपने घर से निकला और 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा के डिस्टेंस में वो बंदा ट्रैवल कर रहा, और वहां जो है 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है। 2 चीजें, एक 92 किलोमीटर के इरादे से निकला हो और वहां 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो। ये 2 चीजें अगर जमा हो गई तो उसे मुसाफिर कहेंगे। ये 2 चीजों में से अगर एक भी नहीं है तो उसे मुसाफिर नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई सिर्फ 50 किलोमीटर जाता है तो उन्हें मुकीम ही है, मुसाफिर नहीं, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरीके से 92 किलोमीटर तो गया लेकिन वहां जाकर 20 दिन ठहरने का इरादा है, 15 दिन से ज्यादा ठहरने का इरादा है, तो भी वो मुसाफिर नहीं, मुकीम कहलाएगा। उसके ऊपर भी कुर्बानी मुआफ नहीं करना पड़ेगा। मुसाफिर पर कुर्बानी मुआफ है, मतलब जरूरी नहीं, वाजिब नहीं, करेगा तो सवाब मिलेगा, नफली कहलाएगा। लेकिन वाजिब कब होगी, जब वो मुसाफिर नहीं होगा, मुकीम होगा। तो नंबर 1 बात, तो मुसाफिर किसे कहेंगे, अपने घर की और अपने शहर की बाउंड्री से निकल गया, 92 किलोमीटर जाने का इरादा हो, नंबर 1। नंबर 2 जो है वहां 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, इस तरीके से ये 2 चीजें जमा है तो उस बंदे को मुसाफिर कहेंगे। कुर्बानी मुसाफिर पर वाजिब नहीं है, अगरचे उन्हें उसके पास करोड़पति क्यों ना हो। तो ये 3 दिन अगर उन्हें सफर में था तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन ये 3 दिनों में 1 दिन सफर में था, बाकी 2 दिन घर में था, अगर बोला तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर मुसाफिर ने कुर्बानी की तो ये नफिल है, नफिल का सवाब मिलेगा। अगर छवे मैं कहाँ तो गाँव में रहा तो भी घर में किसी तो दे को जाता हूँ, मैं घर वाले किसी तो बोल को जाता हूँ, या पैसे भिजा दिए हमें हो जाती है तो इंशाल्लाह नफिल होती, तो भी इंशाल्लाह उसकी अदा होती, सवाब मिलेगा। और फकीर ने अगर न मन्नत मानी हो, ना कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा हो, उसका कुर्बानी करना भी नफिली है। जो गरीब आदमी होता, फकीर जिसे बोलते गरीब आदमी होता, तो अगर उन्हें, इससे पहले हमने मसले को सुना था, पार्ट 3 पार्ट 2 देख लें, हमारा अभी पार्ट 4 चल रहा, पार्ट 3 पार्ट 4 देख लें, उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो गरीब आदमी है, उसने अगर मन्नत मानी है तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता। हालांकि गरीब के ऊपर कुर्बानी नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन अगर उसने किसी काम की मन्नत मांगी कि मेरा ये काम अगर हो गया तो मैं कुर्बानी करूंगा, तो वो काम पूरा होने के बाद उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती। इसी तरीके से गरीब आदमी अगर
बकरा इसलिए खरीदता कि मैं कुर्बानी के लिए ये बकरा खरीद लूं, ये इरादे से अगर उन्हें खरीद रहा तो तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती। लेकिन दो चीजें, एक मन्नत गरीब आदमी पर, नॉर्मली गरीब आदमी पर कुर्बानी वाजिब नहीं, ओके ये बात क्लियर है। लेकिन गरीब आदमी पर भी कभी कभार कुर्बानी वाजिब होती, कब? वो एक मन्नत मांगने की वजह से, और दूसरी सूरत ये है कि बकरा या जानवर खरीदते वक्त उसकी नीयत ये है कि मैं इसे कुर्बानी करूंगा। तो खरीदते वक्त अगर कोई गरीब आदमी इस नीयत से अगर खरीदा जानवर कि मैं इसे कुर्बानी करूंगा तो उसके ऊपर वाजिब हो जाती। तो अब उसने मन्नत भी नहीं मांगी और जानवर खरीदते वक्त उसका इरादा भी नहीं है कि वो कुर्बानी करूंगा, जस्ट घर में पालने के लिए लिया, तब अगर वो कुर्बानी करता है तो उसकी तरफ से नफिल अदा होगी, वो उसके ऊपर फर्ज नहीं है लेकिन सवाब मिलेगा। बकरी का मालिक था और उसकी कुर्बानी की नियत कर ली, या खरीदते वक्त कुर्बानी की नियत ना थी, बाद में नियत कर ली, तो उस नियत से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यानी गरीब आदमी पर कुर्बानी कब वाजिब होगी? जैसे मैंने आपको दो सूरतें बड़ी बताई, एक तो ये कि मन्नत मांगी हो, और नंबर दो ये कि उसने खरीदते वक्त, जानवर खरीदते वक्त उसकी नियत ये हो कि मैं ज़िबा करूंगा, कुर्बानी दूंगा। ये दो सूरतें। और अगर हाजी है, गरीब आदमी ही क्यों ना हो, अगर वो हज कर रहा, हज तमत्तो और हज क़िरान कर रहा है, तो उसके ऊपर ये हज की कुर्बानी भी वाजिब हो जाती। लेकिन ये तीनों सूरतें नहीं, मन्नत भी नहीं मांगी और जानवर खरीदते वक्त उसने नियत भी नहीं की थी कि मैं कुर्बानी करूंगा, और तीसरा वो हाजी भी नहीं है जिसकी वजह से हज की कुर्बानी वाजिब हो, तो अब अगर वो करना चाहता तो नफली कुर्बानी होगी, उसके ऊपर जरूरी नहीं लेकिन करे तो सवाब मिलता। अभी अब एक सूरत क्या बताए, मिसाल के तौर पे एक अकेले के पास बकरी है, घर को उसका हो, बस बकरियां पाल रहा हूं, उसकी नीयत नहीं होती मैं ये बकरी कुर्बानी करूंगा या कुर्बानी के दिन ज़िबा करूंगा, जस्ट उन्हें घर में पालने के लिए रखा है, वो एक। और नंबर दो, उन्हें बाजार में जाकर खरीदा। एक सूरत क्या करता, ऑलरेडी उसके पास बकरी है, वो कुर्बानी के वास्ते नहीं, जस्ट उन्हें मालिक है, उसके पास है। और अब एक सूरत क्या बताए कि बाजार से चुपके खरीद ले को घर को ले ले, क्या बस सच खरीदते वक्त तो कुर्बानी की नियत नहीं है। तो ये दोनों सूरतों में उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन करेगा तो वो नफली होगी। तो पता ये चला कि मिसाल के तौर पे कौन तो किसके घर में बकरे हैं, भाई 2-3 बकरे हैं चूंकि बीच में लिए पालने के वास्ते, लेकिन लेते वक्त कुर्बानी की नियत नहीं थी, जस्ट घर में पालने अच्छा रहता, बच्चे भी खेलते उससे, तो उस वजह से लिए, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से एक और सूरत मैंने आपको बताया कि खरीदते वक्त भी ये नियत नहीं थी, तो दोनों सूरतों में कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी वाजिब होने की कुछ शराइत हैं, मुसलमान होना, बालिग होना और मालिक निसाब होना। ये डिटेल में मसाइल है, इंशाल्लाह तरतीब हम सीखेंगे। मालिक निसाब होना ये एक मसला आप समाप्त फरमा ले। मालिक निसाब होने का मतलब ये कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती। एक बाजार में आपको 52.5 तोला चांदी का रेट मालूम कर ले। 52.5 तोला चांदी का रेट मतलब 52.5, इसे 52.5 तोला बोलते, यानी 50.5 को 2, 50.5 को 2 तोला चांदी का रेट बाजार में कितना है देख लियो। मतलब 1 तोला का रेट मालूम कर लेना, उससे तुम्हें मल्टीप्लाई करना 52.5, तो आजकल के हिसाब से 37,000 हो रहे, 37,000। तो अगर किसी के पास 37,000 कैश एक्स्ट्रा, घर की करंट बिल निकालकर, घर का किराया निकालकर, हॉस्पिटल का खर्चा निकालकर, स्कूल फीस निकालकर, राशन का निकालकर, सब निकालकर एक्स्ट्रा कैश जरूरत नहीं है उसे, 37,000 मतलब आजकल के हिसाब से 50 को 2 तोला चांदी उतनी में मिल जाती। पता उसके पास कैश है या 37,000 के रेट के बराबर चांदी उसके घर में है, या 37,000 के रेट के बराबर उसके पास सोना है, या 37,000 के रेट के बराबर घर में जरूरत से ज्यादा चीज कौन सी तो है। जरूरत से ज्यादा मतलब 2 गाड़ियां मेरे पास है, एक गाड़ी मेरी जरूरत के वास्ते, अब एक गाड़ी एक्स्ट्रा, क्या भी जरूरत नहीं है, तो वो गाड़ी का रेट अगर 37,000 है, इसको 7,000, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होती। तो ये ज़कात में सिर्फ सोना चांदी पैसा माल तिजारत पर होती थी, लेकिन इसमें सोना पर, चांदी और जो बिजनेस का आइटम है वो भी, और उसके साथ साथ कैश पर। लेकिन एक और इसमें आइटम यह आता कि हर वो चीज जो जरूरत नहीं है तुमना, और उसकी क्या तो एक वैल्यू है, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट बनता, तो वो चीज भी हिसाब में लेना पड़ता।
उलमा यहाँ तक फरमाते कि अगर उसके पास 4 रूमा है घर में, 2 रूमा यूज कर रहा हूं, 2 रूमा ताला दाल को खाली है, मुकल्लफ है, मुकफ्फल है, मतलब क्लोज है वो, तो वो 2 रूमा का हिसाब भी लेते। उसके पास 15 जोड़ी कपड़े हैं, पहन रहा सो खाली 10 जोड़ी, लेकिन 5 जोड़ी एक्स्ट्रा है, वो भी हिसाब में लेना पड़ता। मतलब सिंपल ये कि हर वो एक्स्ट्रा चीज जो जरूरत नहीं है, जरूरत की चीज करोड़ रुपए की रख दे, हिसाब में नहीं आती। एक कार है करोड़ रुपए की है, जरूरत डेली यूज कर रहा, तो वो हिसाब करने की जरूरत नहीं। जरूरत से ज्यादा कौन सी तो चीज रख दे, वो हिसाब में लेना पड़ता। अब कभी कभार हमारी औरतों और मर्दों के पास शादी के जोड़े 10-10 हजार के रहते, एक जोड़ा 10 हजार का, 15 हजार का रहता। कभी कभार अगर और ज्यादा अमीर लोग हैं तो 50 हजार, लाख तक का भी एक जोड़ा रहता। अब वो कब पहने, शादी में एक ही पहने, अब वो जरूरत से ज्यादा हो वो क्या पहन रहे जरूरत की, तो वो हिसाब से देखे तो 99% सबके सब पर कुर्बानी वाजिब होती। इसीलिए मसाइल सीखना जरूरी है। माल तिजारत, अब ये जरा जरा है कले, तो मिलाए तो भी हिसाब करना पड़ता। मिसाल के तौर पर मैं क्या बोला, कैश हो, सोना हो, चांदी हो, ये सब 52.5 तोला चांदी के रेट के बराबर आजकल के हिसाब से 37,000 मैंने आपको बताया, यानी 30,000 रुपए। चलो भाई ये एक 37,000 तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन सब मिलाए तो पहुंचते हैं, तो सब मिलाना पड़ता। मिसाल के तौर पर 5,000 कैश है, 5,000 का सोना है, 5,000 की चांदी है और 10,000 कैश है मेरे पास, या फिर दुकान में बेचने का माल है, और एक 5,000 का एक्स्ट्रा आइटम कौन सा तो घर में पड़ा, जरूरत नहीं है वो, तो सब मिलाना पड़ता। सब मिले तो अगर 40,000 हो रहे तो उसे मालिक के निसाब बोलते, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती। इसीलिए ये मसाइल सीखें। ये जो हमारा सिस्टम है कि खाली अब्बा देते घर में कुर्बानी, खाली अम्मी देते, ये साल अम्मा की तरफ से, नेक्स्ट साल अब्बा की तरफ से, अब एक भैया की तरफ से, अब भाभी की तरफ से, ये सब घर के जो रसूमात है छोड़ को सही मसाइल सीख कर आप कुर्बानी के मसाइल आप अदा करें, वरना गुनहगार होंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मालिक की करीम कहने सुनने में अगर कुछ गलतियां हुई तो अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमा और इसकी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन